Hi everyone, hope you guys are doing great. So finally we are here and going to start the new series that we have talked about, that we have discussed about. If you have watched the earlier video, that was a short video on YouTube Shorts wherein I did talk about that we will be starting with this current affairs series from today. Now in that video I have also informed that because we are already starting late in the month of January and I just did not want to waste any further time, so I was not waiting for February to come and then starting the things from there on. So I decided that I would be finishing the whole of the pending things of January as soon as possible. So I will take time from you. I would say most probably by first week of February I'll finish all the January ka pending works, all these newspapers. So we are starting with January 1 today because I would need your feedback etc also. Anyways, we'll talk on that a little while. So what I was telling is कि January का कर लेने के बाद हम February से तो 1st of February से every day we would be doing this, ठीक है. So you would be getting all the updates in the section. You can just check the playlists. I would be creating different playlists for the same. You can also have all the updates about it in the Telegram channel, the link of which you will find in the description as well as in the comment section. You will find a pinned message from my side and you can access it from there so that you are updated regularly about it. We are going to do it in a very, I would say, organized manner, not something haphazard, not something just doing for the sake of doing. So what I have planned based on different inputs that I have got from you people only. I had different sessions, I talked about it, I got different opinions via different platforms. So there are two things that people want me to start with. First is the current affairs, another is any static subject. For the static subject, I am still in the planning process. Once I finalize that, how do I approach? Because I just don't want to start and then, just end it haphazardly or end it in between without completing. Because I had promised this time that this is going to continue. So for that, I would still need thoda sa और time so that I can figure out and then start any static subject as soon as possible. Regarding, because I have some other professional commitments also, there are things which cannot overlap. So that was also one reason that I kept it holding for some time. Now that things are clearer on my another end, I can focus full-fledged here. So regarding the current affairs, what I have tried to do this time is, because see, you will get many videos in the market. There is no doubt about it and there is no dearth of that. But the issue is that how do you approach the newspaper? Is it convenient to you? Because many of the people have told me that we are not able to understand कि कैसे करना है, ठीक है. उस कैसे करना है approach को, and it's not something strategy related. I'm sorry, but you will not get strategy related videos in my sessions. This is pure examination oriented, academic oriented. What are the requirements that you need to have before we begin this session? I'll take 1 more minute about it. Firstly, it's not needed that you are thorough with your syllabus. Of course not. But what is needed is if you have the syllabus of the GS papers, the mains paper with you, read it in the hindsight. जब आप न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हो, आप बिल्कुल इसको एक फ्रेश बिगनिंग की तरह करो यहाँ से. Please read the syllabus in the hindsight so that you're familiar with the terms. While you are seeing my lectures also, please have the copy of the syllabus with you. From the next video, you can do this practice, okay? Or you can pause it and have it if you have the, the syllabus ka copy with you. The next thing that we need to discuss is कि इसके लिए जो prior knowledge की ज़रूरत है, it's not that of course all the subjects would be covered. वो आपका नहीं हो पाएगा. But जैसे जैसे मैं साथ में बोलते जा रही हूँ, if you are able to do that and if you are able to mark those things that I'm telling you, trust me, you will notice the difference, I would say, even after completing 1 month. तो अब 1 महीना मैं तो पूरा जनवरी खींचूंगी नहीं. I'll just take, maximum 1 week to finish the whole of January, or let's say 10 days to finish the whole of January. You give 7 to 10 days and experiment and see if this January thing is working for you. Because if this January thing works for you, it will work for all the other months also. This is as simple as that. So those of you who are new to my channel, now there are regular videos coming related to the UPSC Civil Services examination. You guys can subscribe to the channel. Just click on the
icon that you must be seeing, or you can just either way also subscribe to the channel and you would be getting regular updates about it. Let's now start. So as I just told you that I would be starting with January 1, as you can see on the screen, okay, January 1 2022, and finishing all the other days as soon as possible. Let's see how do we approach the newspaper. अगर हम साइड से करना शुरू करें तो सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, ठीक है। वो कैसे पता चलता है, वो दो चीज़ों से पता चलता है, एक सिलेबस से, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। जब आप लेट्स से हम यहाँ का चूँकि हम एग्जाम्पल के हिसाब से कर रहे हैं, एंड ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट नोट मेकिंग फ्रॉम, ठीक है। सो डोंट वरी, बिकॉज आई एम समबडी हु रियली फेवर्स इट। अब आप ऑफलाइन बना रहे हो, कॉपी पे बना रहे हो, या ऑनलाइन बना रहे हो इन एनी सॉफ्टवेयर, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आई लीव दैट ऑन यू टू डिसाइड। अब जो फर्स्ट, अच्छा अगर हम लेफ्ट साइड से थोड़ा सा, ये फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा मैं स्लो जाऊंगी फॉर द रीज़न दैट आई हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई वुड जस्ट हिट द पॉइंट एंड डायरेक्टली टॉक अबाउट द स्टफ्स, ओके। इट सेज दैट हियर एज यू विल सी ऑन द लेफ्ट साइड, ये जो दो छोटे छोटे आपको न्यूज़ दिख रहे हैं, अगर आप इनको पढ़ते हो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यू विल बाई रीडिंग द हेडिंग्स इटसेल्फ यू विल अंडरस्टैंड। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, डिसओरिएंटेशन ऑफ क्रू इन पुअर वेदर लाइकली कॉज ऑफ क्रैश। अगर आपको न्यूज़, आपने, आई एम वेरी श्योर सबने सुना होगा ये चीज़, हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड उनके साथ और जितने लोग थे, ठीक है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है क्रैश का, इसको लेकर के जब इंक्वायरी की बात की गई तो इस इंक्वायरी में ये निकल के आया कि एक टर्म आया, तो हम उस, देखिए ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है सिलेबस के हिसाब से। ऑफकोर्स बीइंग एन अवेयर सिटीजन यू शुड नो अबाउट दीज थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सिलेबस का हिस्सा ये नहीं है, लेकिन इसमें से सिलेबस में हम इन पॉइंटर्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। वन मोर थिंग, दैट वट एवर वी आर गोइंग टू कवर विल बी इम्पॉर्टेंट बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेन्स पर्सपेक्टिव, that you will have to keep in mind, okay? So I'll be giving you inputs that how you can use these pointers in your answer writing as well. Now let's see, when it says that, आप जब इस पूरे न्यूज़ को अगर आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेके, तो ये पूरे इंक्वायरी पे बात करते हैं कि क्या हुआ था, क्या निकल के सामने आया उस क्रैश के इंसिडेंट को लेकर के। यहाँ पर एक टर्म आता है, ये जो टर्म आपको दिख रहा होगा, दैट इज CFIT, विच सेज कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन। उसी का एक्सप्लेनेशन, ये जितना भी मैंने हाईलाइटेड आपको दिखाया है ना, ये अलग अलग जगह उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बेसिकली इन सारों को पढ़ के आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये जो टर्म है इसका मतलब वो साफ साफ कहते हैं, जैसे अगर हम ये लास्ट वाला एक्सप्लेनेशन देखें, क्योंकि वो सीधा सीधा एक अथॉरिटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है जो कि US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन बताता है। तो अकॉर्डिंग टू देम दे डिफाइन द CFIT एज एन अनइंटेंशनल कोलिजन विथ टेरेन, ठीक है, कि लेट्स से हेलीकॉप्टर जा रहा है, अब अचानक से सामने जो टेरेन है, टेरेन में क्या क्या आ जाएगा आपका, ग्राउंड, माउंटेन, वाटर बॉडी, कोई भी ऑब्स्टिकल हो गया, अनइंटेंशनली वो हेलीकॉप्टर लेट्स से उसमें टकरा गया, ठीक है। अब यहाँ पर द एयरक्राफ्ट इज अंडर पॉजिटिव कंट्रोल, अदरवाइज एयरक्राफ्ट पॉजिटिव कंट्रोल में था पायलट के, लेकिन वेदर के, मोस्टली वेदर को ही मानते हैं या ऐसे टेरेन के इश्यूज को मान लेते हैं जहाँ पे कि वो अचानक से टकरा गया, तो पायलट की गलती इसमें नहीं मान रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि पायलट इज इन फुल कंट्रोल ऑफ द क्राफ्ट बट ड्यू टू फॉल्टी सिचुएशनल अवेयरनेस एयरक्राफ्ट स्ट्राइक्स द टेरेन। अब क्या है, अब ये चीज़ हम का यूज़ करेंगे, चांसेस नहीं है कि प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, इसको हम यूज़ कर सकते हैं आपका GS3 सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जो आपका टॉपिक है, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी मेजर इशू, यू नेवर नो सम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड। अगर प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कुछ आता है तो एनीवेज यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, नहीं भी आता है तो इसका रेफरेंस आप कहीं पर यूज़ कर सकते हैं कि हाउ डू वी इंश्योर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी डिस्पाइट ऑफ सच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। GS3 में साइंस एंड टेक भी है और सिक्योरिटी भी है, दोनों का मिक्स मैच करके हम इस पर बात कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू पिक पॉइंट्स टू यूज इन योर प्रीलिम्स और मेंस ऑल्सो। लेट्स सी अनदर न्यूज सेज GST काउंसिल डिफर्स टैक्स रेट इंक्रीज ऑन टेक्सटाइल्स। अब ये सब ऐसे न्यूज़ हैं जिसमें जो कि बीच बीच में अपडेट होते रहता है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो न्यूज़ आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसमें से जो पिक करने वाली चीज़ है, एंड आई वुड अज्यूम दैट समबडी लेट्स से इज जस्ट अ बिगिनर, तो अगर मैं उस चीज़ पे बात करूँ तो यहाँ पर जो टर्म आया आपका GST काउंसिल,
नाउ दैट्स अ बॉडी. किस तरह की बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में स्टैट्यूटरी है, क्या है, रेगुलेटरी है, क्या किस तरह की बॉडी है, ये आपको फाइंड आउट करना है. अब प्रिपेयर करने का तरीका क्या होना चाहिए? रिलेटिंग द स्टैटिक विथ करंट, नहीं तो फिर हैफेजार्ड हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है. हाउ डू यू रिलेट द स्टैटिक टू करंट? आप क्या कर सकते हो? डू वन थिंग. नाउ जैसे पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आपके पास सीधे एक किताब है, आई अज्यूम मोस्ट ऑफ यू वुड बी रेफरिंग टू द बुक बाय एम लक्ष्मीकांत. जस्ट ओपन दैट बुक, चेक जहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाला जो सेक्शन है वहाँ आप खोजिए जीएसटी काउंसिल कहाँ है, मिल जाएगा आपको, चिंता मत करिए, लेटेस्ट वर्जन में यूल गेट इट. वहाँ से इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योर पॉलिटी, लेट्स से स्टैटिक, आपने ये न्यूज़ पढ़ लिया, आपको बेसिक चीज़ पता है, अगर आप इसमें से कुछ काम का होता तो मैं अभी बता देती, जो कि नोट करने लॉन्ग टर्म. देखिए, नोट हमेशा वही चीज़ करना है जो कि आपको साल 1.5 साल बाद जाके काम आए. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. यू डोंट हैव टू नोट एवरी लिटिल थिंग दैट यू आर रीडिंग इन द न्यूज़पेपर, देन तो यू विल कॉपी द न्यूज़पेपर विच विल ऑफ नो सेंस. You have to note only the things which are needed to solve some kind of question in the examination, prelims or mains or whatsoever, and that too that is needed 1 or 1.5 years after. So you have to focus accordingly. तो इस पॉइंट पे अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं तो मान लीजिए आपने ये जीएसटी काउंसिल बॉडी का जो स्टैटिक पोर्शन है कि ये बॉडी क्या है, कैसी है, कैसे फंक्शन करती है, इसके मेंबर्स कैसे रहते हैं, कैसे चूज़ किए जाते हैं, इसकी वैल्यूज़ क्या है, इसका मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एट्सेट्रा. ये सब आप स्टैटिक वहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे. आप देखते जाओगे, वंस यू आर डन विथ लाइक से 5 से 6 महीने का न्यूज़पेपर, स्टैटिक में आपका आधा से ज़्यादा, एटलीस्ट पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करें, आधा से ज़्यादा ऑलरेडी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा. यू विल बी एबल टू फिनिश मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस बाय दैट ओनली. सो योर स्टैटिक एंड करंट वुड बी लिंक्ड एंड यू विल हैव द एग्जाम्पल्स पुट इन देयर ओनली. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, जहाँ जहाँ पर जो न्यूज़ काम की नहीं है उसको मैंने रहने दिया, ठीक है. ये सब बस आपको अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए. अब यहाँ पर थोड़ा सा बस एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके दिया हुआ है. अब के टाइम में, ऐसे तो पहले इस तरह के क्वेश्चंस का कोई खास रेलेवेंस नहीं होता था, लेकिन अब के टाइम में स्पेशली सीइंग द 2021 पेपर, यू नेवर नो यूपीएससी आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछते. दे हैव टॉक्ड ऑन अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स एटसेट्रा ऑल्सो. Try and be prepared with any of the factual information that you are seeing in the newspaper. Now don't take it for granted कि अरे ऐसा तो नहीं आता है, इससे तो कभी नहीं पूछते हैं, because I think that's going to be riskier, seeing the pattern that's now evolving. So for example, they have talked about this body, National Centers for Disease Control. अब ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की लैब है एंड a key lab in India's genome sequencing network. तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है, दिल्ली बेस्ड है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है. बस एक लाइन में आपने कहीं पे नोट करके लिख लिया. यू विल रीड इट 2-3 टाइम्स एंड यू विल एनीवेज रिमेंबर इट. यू डोंट हैव टू मग इट अप ऑल्सो. आगे बात करते हैं. यहाँ पर बात किया जा रहा है FCRA रजिस्टर्ड NGOs की. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अ रजिस्ट्रेशन अंडर FCRA क्या है? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. किसी भी NGO के लिए, अब ये पूरा एक न्यूज़ था जो आपने ऐसे ही पढ़ लिया, पर उसमें से जो एग्ज़ाम के लिए आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो क्या कहता है कि NGO के लिए रजिस्ट्रेशन अंडर दिस FCRA इज़ नीडेड और एसोसिएशन टू रिसीव फॉरेन फंड्स एंड ऑल्सो इट इज़ रिन्यूड एवरी 5 years. इसको आप यूज़ कहाँ कर सकते हो? इसको आप 2 जगह यूज़ कर सकते हो. एक आपके GS3 में, ठीक है, जहाँ सिक्योरिटी रिलेटेड मामले आते हैं, क्योंकि जो इस तरीके का मुद्दा होता है उससे किसी भी तरीके की ब्लैक मनी सर्कुलेशन जो है उसको हम रोकने में, कर्ब करने में हेल्पफुल होता है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो. सेकेंडली, आप NGOs के टॉपिक पे इसको मेंस आंसर राइटिंग में, अब ये प्रीलिम्स का नहीं है, मेंस आंसर राइटिंग में GS2 में आपका एक सिलेबस है. जब आप GS2 का देखेंगे जहाँ पे यू विल टॉक अबाउट लेट्स से SHGs, NGOs वगैरह, वहाँ पर आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए. प्रीलिम्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? FCRA के बारे में थोड़ा सा जस्ट सर्च समवेयर. FCRA आपको पता होना चाहिए कि क्या है, दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है क्या. 2-3 लाइंस बस इसके बारे में पता होना चाहिए एंड दैट विल सफाइस. ऐसे कर करके आप हर न्यूज़ में से पॉइंटर्स निकालेंगे और उसके प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड पॉइंट्स को कवर करते जाएंगे. दैट वाज नाउ द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. अगर मैं आपको सेकंड दिखाऊं, अब देखिए चूंकि ये सिटी से रिलेटेड होता है, तो ये भी पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में कैसे पेजेस आते हैं. तो दे हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट नॉर्मल न्यूज़, ठीक है, जैसे कोर्ट स्टेक, पुलिस टू, टास्क ओवर, रायट्स, प्रोब एटसेट्रा. तो इसमें कुछ ऐसा काम का नहीं है, ये सब जस्ट स्किपिंग के लिए है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है. थर्ड पे आते हैं, मैंने सब हाईलाइट कर दिया है एज अ सैम्पल.
यहाँ पर बात हो रही है रेसिडेंट डॉक्टर्स कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट जॉइंट ड्यूटी पुलिस टू कैंसिल एफआईआर। ये भी सिर्फ न्यूज़ जानने के लिए थी। ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए था कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं किस इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत बड़ा मामला हुआ था। लेकिन ये चीज़ आप यूज़ कहाँ कर सकते हो? यू हैव टू यूज़ दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी एग्जाम्पल वेल यू आर राइटिंग एनी आंसर। दो एस्पेक्ट पर, कहाँ पर? एक हो गया आपका GS2 में गवर्नेंस और GS2 में ही हेल्थ एक सेक्टर है। इसको आप एग्जाम्पल की तरह मेंस में यूज़ कर सकते हो। लेट्स से कि इस तरीके से जब डॉक्टर्स की सर्विसेज रुक जाती हैं तो कितना नुकसान होता है। गवर्नेंस में तो आ ही जाएगा आपका कि काउंसलिंग को लेके इशू हुआ था, डिले रहा था नीट PG काउंसलिंग में, जिसकी वजह से रेसिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल की, प्रोटेस्ट करा। चूँकि ये काम नहीं कर रहे थे तो जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन भी पड़ जा रहा था। और जितने टाइम ये लोग काम नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत लॉस हो रहा था। तो उस तरीके से आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर सकते हो, बिकॉज स्पेशली सिंस कोविड हैज़ हैपेंड, सिंस पास्ट 2 years, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन द केस ऑफ इंडिया हैज़ बिकम अ टॉपिक ऑफ रियली सिग्निफिकेंस। तो यू कैन नॉट डिनाई दिस। एंड देन गवर्नेंस तो है ही। फिर एक बड़ा अच्छा सा सेक्शन है, हाउ आर जजेस हेल्प्ड सेव लाइव्स ड्यूरिंग कोरोना। देखिए आपको सारे हेडिंग्स बहुत अच्छे से, न्यूज़पेपर में हमेशा आपको सारे हेडलाइंस हेडिंग्स बहुत अच्छे से ध्यान देने हैं। अब यहाँ पे जब आपने ये देखा तो मैंने उसके कुछ पॉइंटर्स जो हैं जैसे हाईलाइट कर दिए हैं, तो आपको पता चलेगा व्हेन यू विल रीड दिस पॉइंटर्स यू विल रियलाइज कि दे हैव टॉक्ड अबाउट कि कैसे जुडिशरी ने रोल, स्पेशली जजेस ने, हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, रोल प्ले करा। बेसिकली इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट पर फोकस करा है, बट वी कैन यूज़ इट इन जनरल ऑल्सो, टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ जुडिशरी। हेल्प्ड सेव लाइव्स ड्यूरिंग कोरोना। उनके स्पॉन्टेनियस जजमेंट, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, आस्किंग द सेंटर टू टेक सर्टेन डिसीजन, आस्किंग द सेंटर टू गिव अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग लेट्स से या फिर पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट अबाउट द अकाउंटेबिलिटी कि आपके पास बेड कितने हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट कितना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो यू यूज़ दिस इन योर GS2 ऑल्सो। GS2 में भी आप हेल्थ, जुडिशरी, ठीक है, इन सब मुद्दों पर मेंस के लिए, सब मेंस के लिए बता रही हूँ, जहाँ प्रीलिम्स का होगा आई पॉइंट इट आउट, यू कैन यूज़। एंड देन जब आप कोविड से रिलेटेड चीज़, डिजीज़ स्पेसिफिक GS3 वगैरह में बात हो सकती है तो आप वहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। एंड दे आर रियली गुड पॉइंटर्स। आपको नोट्स बनाने में आना चाहिए दैट यू विल जस्ट शॉर्टन आउट द पॉइंट्स। इतना जैसे जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हैं, सो उसमें से बस आप काम की चीज़ें लिख सकते हैं। मैंने काम की ही चीज़ें हाईलाइट की हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट कि कैसे रोल प्ले करा, तो उनका टाइमली इंटरवेंशन था। उसके अलावा लेंदी कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी, वीकेंड्स पे भी करते थे, लेट नाइट हियरिंग्स होते थे। एग्जाम्पल्स आप देंगे तो आप बोल सकते हो कि सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट को बोला गया कि डिटेल दो नंबर ऑफ बेड्स के जिसके पास ऑक्सीजन सपोर्ट है। अर्जेंट हियरिंग की गई, लोगों को बोला गया कि जो राइट टू लाइफ है, अब आपको राइट टू लाइफ किस तरह का राइट है, फंडामेंटल है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा राइट है, पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो जब आपने उस राइट टू लाइफ के बारे में खोजा, ढूंढा, तो आप पॉलिटी जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। देन यू विल रियलाइज़ कि अच्छा अगर कोई भी राइट लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कौन से आर्टिकल का है, अगर फंडामेंटल है तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। एंड देन रेस्ट पॉइंटर्स यू कैन सी कि ऑर्डर क्या क्या दिए, शॉर्टेज की बात की गई, प्रायोरिटी की बात की गई, एक कॉरिडोर की बात की गई कि ऑक्सीजन टैंकर्स जो है वो लेकर के आओ। दिल्ली गवर्नमेंट को बोला गया कि जल्दी से टेस्टिंग सेंटर्स रैम्प अप करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो यू विल सी अबाउट द रोल ऑफ जुडिशरी एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इतना कुछ रेलेवेंस नहीं है। Then here you read one news. It is a novel about change, says Namita Gokhale. Now, why did I mark this? Earlier, the UPSC aspirants would not pay attention to this because that was not needed as such also. And I would agree with that. Seeing the 2021 paper that they have talked about sports and awards, etc. is not something now we can ignore this. तो अब आप ध्यान दीजिए जब यहाँ पर ये बात हो रही है, साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर her English novel. Now you don't have to focus on her novel as such, you just talk about the award. आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। किसी भी जनरल नॉलेज की बुक में ये सब अवार्ड्स वगैरह का बड़ा डिटेल होता है, there is no doubt about it. आप आराम से वहाँ से रट सकते हैं, but that would be a burden to remember things and in the end and you will feel like overburdened. सो इट्स बेटर दैट साथ साथ जो न्यूज़ आ रहा है आप करते जाइए। साल डेढ़ साल में वैसे भी आपके पास इतना मटेरियल जमा हो जाएगा कि उसके बियॉन्ड वो पूछेंगे नहीं। तो अब जैसे आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड पता होना चाहिए दैट इट इज़ अवॉर्डेड टू 23 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। सी दिस इज़ अ फैक्चुअल पॉइंट ना, एंड दे कैन आस्क यू इन द प्रीलिम्स। अब जैसा पैटर्न बनता है तो क्यों रिस्क लेना। नाउ दिस इज़ वाई आई हाईलाइटेड दिस टर्म इज़
multilingual literary heritage of our culture. Any kind of question related to culture or literature which is a part of your GS1 art and culture, or let's say an essay if you have to talk about, use such kind of vocabulary. न्यूज़पेपर से आपको निकालना क्या क्या है, प्रीलिम्स के पॉइंटर्स निकालने हैं, मेंस के पॉइंट्स निकालने हैं, एंड दीज काइंड ऑफ वोकैबुलरी विच कैन बी यूज्ड इन योर आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग फॉर दैट मैटर. यूज देम वेरी प्रिसाइसली. इस तरीके के वर्ड्स को आप अलग से नोट करके लिख सकते हैं जो कि सुनने में बड़ा अच्छा प्लीजिंग साउंड होता है, एंड यू कैन यूज़ देम. बाकी यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुक्स एंड द ऑथर्स. अभी तक तो यूपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जा रहा है, बट नाउ यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, बट इट माइट बी यूजफुल फॉर योर अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस. आगे बढ़ेंगे. फिर यहाँ पर एक न्यूज़ है, वेलफेयर स्कीम फॉर वर्कर्स हैंगिंग फायर. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर दी है, जैसे कुछ लेबर कोड्स को लेके बात की. ये सब आपके लेबर रिलेटेड टॉपिक में, गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक में सब यूज़ हो जाएगा. ठीक है, तो आप इसको वहाँ पर कुछ प्रीलिम्स का भी हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए 4 लेबर कोड्स की बात की, तो 4 लेबर कोड्स किस किस चीज़ों से रिलेटेड हैं, वेजेस से, सोशल सिक्योरिटी से, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से. भले ये पास पहले ही हो गए थे बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं. तो प्रीलिम्स में आपका ये वाला फैक्ट हो गया कि 4 लेबर कोड क्या क्या चीज़ से रिलेटेड है. मेंस में आपका क्या पॉइंट हो जाएगा कि आप इश्यूज़ पे बात कर सकते हो. मेंस में क्या होता है, इश्यूज़ होता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड. तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि भाई कोड तो आप ले आए, पार्लियामेंट में पास करवा दिया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया अभी तक, बिकॉज द रूल्स फ्रेम्ड अंडर प्रोविजंस हैव नॉट बीन नोटिफाइड. तो प्रॉब्लम आ गया ना, चैलेंज आ गया. फिर कुछ और डेवलपमेंट्स की बात की कि मिनिस्ट्री लिस्टेड आउट द डेवलपमेंट्स ऑफ 2021 कि लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से या लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से लेबर्स के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. दीज आर द पॉइंटर्स यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर राइटिंग. यही तो आपको बताना होता है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, तो आप बता सकते हो, और इसमें से कुछ काम का निकल गया तो प्रीलिम्स के लिए यूज़ कर लेंगे. जैसे कि क्या बोला गया कि 4 एक्सपर्ट कमिटी जो है वो बनाई गई टू फ्रेम द स्टैंडर्ड्स अंडर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड. उसके अलावा एक ई श्रम पोर्टल, तो ये प्रीलिम्स का पॉइंट्स बन सकता है कि ई श्रम पोर्टल जो है वो किस पर्पस से क्रिएट किया गया था. सो दैट इज बेसिकली अ नेशनल डेटा बेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. रिमेंबर, फर्स्टली मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की बात हम कर रहे हैं. और दूसरी देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ना, यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री. ठीक है, दूसरी चीज़ ये ई श्रम पोर्टल कर क्या रहा है, ये आपको डेटाबेस दे रहा है, नेशनल डेटाबेस दे रहा है. किस तरह के वर्कर्स का, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का. तो अब आपको एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपका इकोनॉमिक्स में हिस्सा आ जाएगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है. इसी तरीके से आप स्टैटिक और करंट को लिंक कर पाएंगे. फिर यहाँ बोला जाता है ऑल इंडिया सर्वेज भी किया गया. ठीक है, मेजर स्टेप की बात की जा रही है 2021 में, क्योंकि माइग्रेंट इशू बहुत ज़्यादा हो गया था ना जब फर्स्ट टाइम कोविड लॉकडाउन हुआ 2020 में. तो लेबर इश्यूज़ को लेके बात कर रहे हैं. सो ऑल इंडिया सर्वेज ऑन माइग्रेंट वर्कर्स एंड क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अप्रैल में ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, बाद में जो उसको यूज़ किया गया. देन मिनिस्ट्री ऑल्सो एक्सपैंडेड द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम टू मोर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. तो ये 3-4 पॉइंटर्स आपको मिल गए ना कि वो मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है लेबर्स के लिए. अभी लेटेस्ट 2021 का मिल गया, और क्या चाहिए. दिस इज़ हाउ यू यूज़ इट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. अब यहाँ पर एक छोटा सा बस इन्फॉर्मेशन है, बस ये आपको पता होने के लिए पता होना चाहिए. दिस इज़ अबाउट that sexual enhancement drugs containing herbs and medicines are not covered under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act. तो बेसिकली ये इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया, एक तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज दैट हैज़ जस्ट कम इन द न्यूज़, बट वो उतना रेलिवेंट नहीं रहेगा. रेलिवेंट है कि ये एक्ट जो है क्या है, क्योंकि ये ड्रग्स, नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड है, ड्रग मेनेस का केस हो जाता है, इसीलिए आपको सिक्योरिटी पर्पज से ये भी पता होना चाहिए. फिर उसमें किस तरीके के ड्रग्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. उसके बाद हम देखेंगे अगले में स्टेट्स को लेकर के है, तो ऐसा देखिए कहीं हाईलाइटेड नहीं है, ऐसा कोई काम का नहीं है. पॉलिटिकल न्यूज़ सारे आपको अवॉइड कर देने हैं. आप अगर देखेंगे ओवरऑल आपको पॉलिटिकल न्यूज़ मिलेगा. Next is editorial. Now in this section I'm not covering editorial because then it will go really lengthy, so I'll see if there can be some other videos made on the editorial portion and I'll surely try to come up with that. You guys can also give me the feedback if you want me to come up with the editorial, if you feel I'm able to make you understand about the nuances which are relevant in the examination. Otherwise also I'm planning to come up with the editorial section. तो अभी के लिए तो हम इसको skip करेंगे. Next is about the news again. ये सब बस न्यूज़ पढ़ने के लिए है. दीज आर जस्ट यू जस्ट रीड एंड स्किप, सिलेबस के हिसाब से नहीं है. यहाँ पे जैसे बात हो रहा है NIA रजिस्टर्स केस अगेंस्ट 6 फॉर जस्टिस ऑपरेटिव.
आपको बात की गई है यहाँ पर एक एजेंसी की, दैट इज़ NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. So that you have to prepare from your polity perspective. All the acts, all the agencies that you come across, it's better that you start preparing it side by side. It really will be very helpful. Trust me. Once you do this exercise, you will get the hang of it once you start doing it, let's say, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना करके, and you will be very comfortable with it. Another act, for example, they have talked about Unlawful Activities Prevention Act, जिसको हम UAPA बोलते हैं. ठीक है, ये एक्ट का भी आपको पता होना चाहिए. जैसे शुरू में हमने FCRA देखा था. बाकी ये तो IPC है, दिस इज़ स्टिल अ लीगल थिंग, कॉलोनियल टाइम्स है, तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा. फिर यहाँ पर टाइम आता है RS एनुअल, दैट इज़ राज्यसभा की एनुअल प्रोडक्टिविटी ड्रॉप्स टू 59%. ये आप इश्यूज़ में, दीज आर द पॉइंटर्स यू कैन यूज एज इश्यूज़ इन योर मेन्स आंसर राइटिंग कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में या फिर लेट्स से हमारा लेजिस्लेचर अच्छे से क्यों नहीं फंक्शन कर पा रहा. सो वन इज़ अबाउट कि सी टॉक अबाउट द लेटेस्ट डेटा. यू कैन यूज दीज आंसर्स, आई मीन यूज दिस पॉइंटर्स एज इंट्रोडक्शन टू योर आंसर ऑल्सो. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो. तो आप डेटा की बात कर सकते हो कि सेकेंड लोएस्ट एनुअल प्रोडक्टिविटी दिखी है जब से ये हुआ है. ठीक है, इतना कम प्रोडक्टिविटी. एंड ऑल्सो दे हैव टॉक्ड अबाउट कि द सिल्वर लाइनिंग, इसमें कुछ एक अच्छी चीज़ क्या थी, दैट अबव एवरेज. तो अगर कुछ बिलो परफॉर्मेंस हो रहा है तो कुछ अच्छा भी है. अच्छा क्या है, अबव एवरेज परफॉर्मेंस बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ अंडर द अपर हाउस. ये आप अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होती हैं, इट्स गिवन इन योर लक्ष्मीकांत, चेक दैट. पार्लियामेंट चैप्टर आप पढ़ेंगे, यू विल टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज़, यू विल टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री फोरम्स, यू विल टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री ग्रुप्स. ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखिए पार्लियामेंट्री फोरम पर डिस्कशन है. तो आपका स्टार्टिंग एक बार करने का हेडेक है, एक बार करने की बात है, एंड सी हाउ योर करंट फ्लोज जस्ट स्मूथली. और 1 से 1.5-2 महीना में, और लेट्स से 5 से 6 महीना में तो ऐसा बिल्कुल हो जाएगा जहाँ पे कि आपके ऑलमोस्ट ऑल द स्टैटिक सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे ऐसे करंट के थ्रू करते करते. तो एक तरीका होता है प्रिपेयर करने का जहाँ आपने पहले पूरा स्टैटिक कर लिया फिर आप करंट कर रहे हो. वो उन लोगों के लिए रेलिवेंट होता है जो कि 3-4 साल लगा के प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 1-1.5 साल में आपने आराम से स्टैटिक किया, फिर 1-1.5 साल में आपने आराम से करंट करा. हो सकता है आप लोगों के पास इतना प्रिविलेज नहीं हो, अगला ही अटैम्प्ट हो 1-1.5 साल का ही हो, तो उसमें दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा. तो ऑफकोर्स फॉर दैट यू विल हैव टू नीड टू नो कि भाई आपके किताब में क्या क्या कंटेंट है. आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके किताब में पार्लियामेंट्री कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऐसे करके टॉपिक्स हैं. तो उसके लिए थोड़ा सा इंडेक्सिंग देखना पड़ता है, चीज़ों को पता करना पड़ता है कि ओके व्हाट आर द थिंग्स दैट आर देयर इन योर सिलेबस ऑल्सो एंड योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. बट वंस यू आर डन विद दिस इज जस्ट अबाउट द रिलेशन. Rest I am anyways there to help you out with connecting the dots. Now here they talk about the Chinese embassy writes to the group of MPs. So they have they have discussed here about the Indian Parliamentary Forum. So अब जैसे इन्होंने तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल, यहाँ पर टर्म आप पूरा न्यूज़ पढ़िएगा फिर हाईलाइटेड पोर्शंस को देख लीजिएगा. तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल इज एन आउट एंड आउट सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप. तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. एंड दे ऑल्सो से दैट इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता होना चाहिए. ठीक है, अच्छा ये जो फोरम है वो कब का बना हुआ है, 71 का है एंड हैज़ इंपॉर्टेंट फिगर्स एज द गेस्ट. फोरम वॉज अ कल्चरल आउटफिट जिसने कि तिब्बतन हेरिटेज को प्रमोट करा एट्सेट्रा. तो मैंने सारी काम की जो चीज़ें हैं आपको हाईलाइट कर दी हैं. अब यहाँ इस तरीके से जब भी आपको इटैलिक्स में टर्म मिले, सब पॉलिटी रिलेटेड होता है. ठीक है, लोकस स्टैंडाई आपको खोजना होगा, आपको जानना होगा, सब पॉलिटी ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं. एमिकस क्यूरे इज अनदर टर्म दैट यू माइट फिगर आउट सम अदर डे इन द न्यूज़पेपर. तो इस तरीके के जो टर्म होते हैं इसका इटैलिक्स में आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में जो है मतलब यूज़ होता है, इसका क्या रेलिवेंस है, एंड देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिलेट द थिंग्स. Then another thing, as you can see, I have highlighted here is Tibet Autonomous Region. Now this is a map work. So in one news only, you are doing your GS2 prelims and mains, then you are doing your polity का कुछ important points. At the same time, you are also doing geography mapping. इन्होंने बोल दिया Tibet Autonomous Region. अब Tibet Autonomous Region क्या है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री आप just you web search, you will get little information. आपको पता होना चाहिए, and then map में you figure out about Tibet and China. ठीक है, आपके पास एटलस हमेशा तैयार होना चाहिए whenever you are doing your newspapers and of course from elsewhere also. If you simultaneously map out the pointers, they are going to be really helpful to you. So try it out and you will see the results.
देन अनादर इज़ अबाउट CBI अरेस्ट NHIA ऑफिशियल। ये सब हमें अरेस्ट न्यूज़ के लिए नहीं है, हमें बस यहाँ क्या करना है, चूँकि दे हैव टॉक्ड अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन CBI। आपने अभी देखा कितने 3 ऑर्गेनाइजेशन हम कर चुके हैं। GST काउंसिल, ठीक है, अभी ऊपर में बात की थी ना, यहाँ पर NIA की बात की थी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और अब हम वापस से आ रहे हैं, हम किसकी बात करें, CBI की। आप देखिए आपके किताब में सब दिया हुआ है, चेक इन योर लक्ष्मीकांत बुक एंड यू विल गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो आपके आधे से ज़्यादा काम तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, कुछ ही दिन में आपकी सारी बॉडीज़ खत्म हो जाएगी। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट कि CBI किस तरीके के केसेस लेती है, क्या काम है, कैसे फंक्शनिंग होती है, बैकग्राउंड क्या है, किस एक्ट से रिलेटेड है, एट्सेट्रा, किस तरह की बॉडी है। एंड दिस इज़ जस्ट अनदर बॉडी विच यू कैन यूज़ एज अ रेफरेंस जब भी आप जैसे इंफ्रा वगैरह रोड्स की बात करते हैं, विच इज़ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज़ जहाँ इसमें भी ये सब आप ऊपर से रीड कर लेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि अब जैसे ये बिल्कुल पॉलिटिकल न्यूज़ है जो कि हमें इग्नोर करना है। दिस इज़ पॉलिटिकल न्यूज़, कौन किसके बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहा है, यू नो, नन ऑफ आवर बिजनेस, ये बिल्कुल इग्नोर करना है। ये सब बस आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, बट इसका कोई मतलब नहीं है। गार्ड्स के डेड, यू नो, डजंट मेक सेंस। ये भी चूँकि पॉलिटिक्स के हिसाब से इसको इलेक्शन आ रहा है तो पॉलिटिक्स के हिसाब से ये न्यूज़ दिया हुआ है। अदरवाइज अगर कुछ इसका आर्ट एंड कल्चर सिग्निफिकेंस होता तो आप पढ़ सकते थे, बट यहाँ पे पॉलिटिक्स ओरिएंटेड है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट, यू नो, अगैन दिस इज़ अबाउट कोविड रिलेटेड थिंग्स, दिस इज़ अबाउट जस्ट टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ें, तो आप ये सब रीड करके स्किप कर सकते हो। यहाँ पे बस टनल वगैरह की बात की गई है, तो कुछ चीज़ें ज्योग्राफी के हिसाब से कभी जैसे किसी पास की बात कर लेते हैं, कभी टनल की, कभी कुछ रोड से रिलेटेड, तो वो सब मेजर चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे तो इसका इतना कोई रेलेवेंस डायरेक्टली लगता नहीं है प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज ये कोविड से रिलेटेड काफ़ी वक्त से न्यूज़ में आ रहा है। बट जैसे मैंने आपको शुरू के फर्स्ट पेज में दिखाया था NCDC पर एक इन्फॉर्मेशन, तो हियर आई वुड जस्ट से कि जो भी इंस्टीट्यूट का नाम आता है, जो भी ऐसे काउंसिल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, आपको उसके बारे में 1 से 2 लाइन पता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अपने साइड से अगर आप सेफर चलना चाहते हैं, सो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑल दीज थिंग्स। आप अपने साइड से करते जाइए, बाद में कोई रिस्क ही नहीं रह जाएगा। पूछते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पूछते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Here they have just talked about the vaccines, तो ये बस आपको अपडेशंस रहने चाहिए कि अच्छा वैक्सीन का क्या नाम है, कहाँ से बन रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब तो अवेयरनेस की बात है और कुछ नहीं है। बाकी ये सब अगर आप पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड इसमें कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से मतलब रिलेटेड न्यूज़ होता है इस पेज पे। तो हियर दे टॉक्ड अबाउट बाइडेन एंड पुतिन ट्रेड वार्निंग्स ओवर यूक्रेन। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैप में फर्स्टली यू कैन फाइंड आउट वेयर इज़ यूक्रेन, ठीक है। इशू और वो सब तो बात पे आएंगे, मैप का सीधा पॉइंट ऑफ फर्स्टली यू कैन डू दिस। देन यू टॉक अबाउट द न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यूज़ उस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ के आपको क्लैरिटी मिलती है कि ठीक है वो क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, तब तो गुड इनफ। नहीं मिलती है, अगर बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो एकदम से आप IR को जंप करके नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि इसके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री समझनी होती है, वर्ल्ड पॉलिटी समझनी होती है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स समझनी होती है, हिस्टोरिकल पॉलिटिक्स समझनी होती है, एंड देन रिलेशन समझने होते हैं, ठीक है, बाईलैटरल, मल्टीलैटरल, बहुत कुछ समझना होता है। तो इट विल टेक टाइम, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू हैव द सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो साथ में आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। तो आपने मान लीजिए यूक्रेन समझने की कोशिश कर ली कि ठीक है वो कहाँ लोकेटेड है, देन यू रीड द न्यूज़ एंड देन यू कैन टॉक अबाउट कि ये सैंक्शन की बात क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता और इमीडिएट कुछ कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो आप थोड़ा बहुत यू कैन लुक ओवर द इशू ओवर इंटरनेट, ठीक है। अगर आर्टिकल पढ़ के बहुत क्लैरिटी नहीं मिलती है तो कोई भी ऐसा, जब आप IR से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है जो कि प्रीलिम्स में, अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे पुराने, तो यू विल गेट एन आइडिया कि पूछा जा सकता है, तो यू विल हैव टू नोट इट डाउन। अगर लगे कि नहीं इसका बस मुझे कुछ मेंस रिलेटेड पॉइंटर्स कहीं नोट कर लेने चाहिए, तो ऑल्सो यू कैन नोट इट डाउन। उसके अलावा रीड द न्यूज़ एंड जस्ट गेट ओवर विद इट, बार बार उसमें और परेशान नहीं होना है। अब जैसे अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, ठीक है, दैट इज़ अबाउट NATO। तो अब ये है क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो भी ग्रुपिंग्स बनती हैं। तो ये आपके IR का हिस्सा भी है, GS2 में आपको डिटेल में कवर करना है, तो वहाँ से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। देन दे से दैट श्रीलंका टू इम्पैक्ट विद इंडिया टू डेवलप ऑयल टैंक्स। ये सीधा आता है सिलेबस आपके बाईलैटरल रिलेशंस का। ये तो देखिए वर्ल्ड न्यूज़ हो गया ना, यहाँ पर आपको वर्ल्ड न्यूज़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर अभी हम इंडिया की डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट US, यू आर टॉकिंग अबाउट रशिया, यू आर टॉकिंग अबाउट यूक्रेन, बट हियर व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। उनसे रिलेटेड जो भी
जैसे कि ये ऑयल टैंक, अब अगर पूछ दिया गया तो स्ट्रैटेजिक ट्रैंकोमली ऑयल टैंक फार्म विद इंडिया, ये स्टैब्लिश होने की बात हो रही थी, तो उसी से रिलेटेड डिटेल्स हैं, ठीक है। आप इसको बस पढ़ के जो भी 3-4 पॉइंटर्स आपको लगे यू कैन नोट इट डाउन, एंड ऑल्सो फिर अकॉर्डिंगली आप किसी भी कंट्री के साथ जैसे बायलैटरल रिलेशंस प्रिपेयर करते हैं, अगर आप सिलेबस में देखेंगे यू नीड टू हैव द सिलेबस साइड बाय साइड विथ यू ऑल्सो। GS2 के एंड वाला में आप देखेंगे IR के 4 या 5 टॉपिक्स है मेरे ख्याल से, एंड यू विल रीड ऑन दिस, एंड देन दे टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन योर नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो, बायलैटरल रिलेशंस। नेबरिंग कंट्रीज़ का भी आपको जानना है और कुछ और मेजर कंट्रीज़ के साथ भी जानना है। तो श्रीलंका के साथ तो नेबरिंग में आएगा ही आएगा आपका, तो आपको रिलेशंस पता होने चाहिए। रिलेशंस जब आपको पता होने चाहिए दो कंट्रीज़ के बीच में, तो आपको बहुत सारे एंगल्स को देखना है, आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, मल्टीपल एस्पेक्ट्स आपको इस तरीके से कवर करने हैं, डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ें कैसे चल रही हैं, कुछ डेटा है और ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट से तो वो पता होना चाहिए, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो वो पता होना चाहिए, सॉफ्ट पावर यूज़ करते हैं कि हार्ड पावर कैसे डिप्लोमेसी बढ़ती है, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये सब सिलेबस के साथ आएगा। अभी एकदम से आई कैन नॉट एक्सपेक्ट द बिगिनर्स टू जंप अपॉन एंड नो एवरीथिंग अबाउट इट, बट जो चीज़ें आपके बेसिक बुक्स में है, लेट्स से पॉलिटी या लेट्स से इकोनॉमी या कभी कल्चर का कुछ आ गया, ज्योग्राफी का कुछ आ गया, तो वो तो आप अपने स्टैटिक से कर ही सकते हो ना। बाकी तो जो साइड बाय साइड फ्रॉम व्हाटसएवर सोर्सेज यू आर प्रिपेयरिंग, यू कैन डू दैट ऑल्सो। यू कैन हैव अ लुक एट ऑल दीज पॉइंटर्स एंड यू विल नोटिस कि आपको मेजर जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी सिलेबस से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं, या आई थिंक हियर वी आर डन विथ इट, वो श्रीलंका वाला ही न्यूज़ है, बाकी इसमें से और कोई ऐसा न्यूज़ नहीं था। देन यहाँ इकोनॉमी, बिजनेस एज एन इकोनॉमी रिलेटेड पॉइंटर्स आ जाएंगे। तो देश से, अच्छा ये क्या है, ये हमेशा क्वार्टर पे वैसे भी न्यूज़ आती रहेगी, तो आपको सिर्फ एक पैटर्न रफली पता होना चाहिए, इसको लिखने याद करने का कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ से जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए वो सब मैंने हाईलाइट कर दिया है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। जब आप एक तरह का डेफिसिट पढ़ोगे तो आपको और डेफिसिट मिलेंगे, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, वो सब क्या होता है वो पता होना चाहिए। देन यू टॉक अबाउट लेट्स से कि प्राइवेट ट्रांसफ़र रिसीप्ट्स में क्या आता है, प्राइमरी इनकम अकाउंट में क्या आता है, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या है, अब ये सब नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स क्या है, SDR क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम आएंगे उस पर नीचे। तो अगर आपने ये सब बेसिक चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विथ इट, तो आपको ये न्यूज़ आपके बिल्कुल ऊपर से जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू इट। सो प्लीज़ डू द बेसिक्स साइमल्टेनियसली। इट्स ओके वंस यू हैव रेड इट, remember in your mind, write it somewhere that okay, this is the topic that I have to prepare, and when you do that topic be very thorough with it, ठीक है, कि आपको रिलेट करने में आसानी हो जाए। फिर आता है कोर सेक्टर का आउटपुट। तो कोर सेक्टर क्या है वो पता होना चाहिए। 8 कोर सेक्टर्स हैं, किसमें हाईएस्ट वेटेज किसका है, लोएस्ट किसका है, ये न्यूज़ में इतनी बार आएगा ना साल भर में कि थोड़ा सा ध्यान देने पे आपको अपने आप पता चल जाएगा। IIP क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अभी वाले में नहीं है, बट आप जैसे जैसे इससे रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे इन दी फर्दर टाइम यू विल कम अक्रॉस द टर्म IIP। तो आपको पता होना चाहिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, कितने वक्त में रिलीज़ होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। देन अब जैसे डिफिसिट का तो बात हो ही गई, फिस्कल डिफिसिट, जैसे ऊपर था आपका करंट अकाउंट, फिस्कल, प्राइमरी, रेवेन्यू मैंने बोल दिया। SDR क्या होता है, आप जब पढ़ेंगे तो यू विल कम अक्रॉस इट। नाउ सी, इन्होंने क्या बोला, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बाय IMF, ये सीधा सीधा एक प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देंगे, दैट SDRs आर रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, दे दिया आपको 4 नाम, अब आप खोजते रहिए, सीधा सीधा यहाँ से एक पॉइंटर बन जाएगा। डिटेल तो आपको पता ही होना है, बट यू विल गेट एक एक पॉइंट, मतलब एक एक क्वेश्चन ऑल्सो ना यहाँ से, 1 लाइनर्स। देन इन्होंने मान लीजिए बात की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन IIP की, वो अलग IIP है जिसकी मैं बात कर रही थी, दिस इज़ डिफरेंट। तो ये क्या है कि IMF IIP को कैसे डिस्क्राइब करता है उन्होंने यहाँ पे बता दिया। So you will read it if you feel like, if you will feel कि you will remember, don't write it. If you feel that it's getting problematic and you might not remember, just write it in your own words, 2 लाइन लगेगा hardly. Then it talks about another organization or let's say commission which is Competition Commission of India. So किस तरह की बॉडी है वो आपको पता होना चाहिए, पूरे न्यूज़ में से आपको सिर्फ यही सब निकालना है। Then LIC, अच्छा ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, आपको LIC नहीं प्रिपेयर करना है, बट दे से दैट LIC of India has set up an LIC Digi Zone here to enhance the digital operations in sales and services for its customer.
डिजिटाइजेशन पर हम इतना फोकस कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड पर हम इतना फोकस कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस मेंस में, कि क्यों सरकार आजकल डिजिटल चीज़ों की इतनी बात करती है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में इसको मेंस में कोट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दे विल नॉट आस्क यू कि LIC डिजी जोन किसने स्टार्ट करा, वो तो पता ही फिर किसने करा होगा ना, दे विल नॉट आस्क यू सिली क्वेश्चंस लाइक दैट, बट येस यू कैन कोट इट इन द एग्जाम्पल। एंड टॉकिंग अबाउट अ प्रीमियर कॉर्पोरेशन लाइक LIC, इफ यू कोट सच एन एग्जाम्पल दैट्स गोइंग टू बी ऑफ कोर्स वेरी प्लीजिंग टू द एग्जामिनर, एंड यू वुड बी फेचिंग एटलीस्ट आधा एक्स्ट्रा मार्क, लेट्स से थोड़ा बहुत, और एटलीस्ट एन इम्प्रेशन विच माइट सर्व यू बेटर फॉर एनी अदर क्वेश्चन, यू नेवर नो दैट। देन यहाँ पे अनदर गो डिजिट की बात हो रही है, टेल्स गो डिजिट टू पुल आउट प्लान, बट यहाँ पे दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस अथॉरिटी, सो यू नीड टू नो अबाउट किस तरह की अथॉरिटी है। बहुत सारे ऐसे रेगुलेटरी, यू नो रेगुलेटर, तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है आपको वो सारे पता होना चाहिए, जैसे कि दिस इज़ IRDAI, तो किस चीज़ से रिलेटेड है, इंश्योरेंस सेक्टर से, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेबी है, आप RBI की बात करेंगे, IRDAI की बात करेंगे, तो अब जैसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस करते चले जाएंगे, रेगुलेटर्स की बात करते चले जाएंगे, इट विल बी हेल्पफुल कि आप एक मैकेनिज्म क्रिएट कर पा रहे हो, अपने से आप रिलेट कर पा रहे हो कि कौन कौन से सेक्टर को लुक करता है। देन हियर दे टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट्स, नाउ सी दे टॉक अबाउट द वीट एक्सपोर्ट्स। इन्होंने क्या बोला, इंडियाज वीट एक्सपोर्ट्स आर मेनली टू द नेबरिंग कंट्रीज। अब ध्यान दीजिएगा, क्रॉप्स पे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीलिम्स में। ऊपर से उन्होंने ये भी बोला है कि बांग्लादेश हैविंग द लार्जेस्ट शेयर। अभी पिछले साल ही, या शायद पिछले साल ही इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया था कि शेयर वाइज किसका ज़्यादा था कंट्री का। सो यू कैन हैव सच एग्जाम्पल्स एंड नोट डाउन सच डेटा एंड सी योर मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। आपको इसके लिए अलग से भागने की जरूरत नहीं होगी कि अरे इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे का ही वेट करेंगे, पढ़ेंगे। जब सर्वे आएगा वो तो पढ़ेंगे ही, बट सर्वे के पहले का जो थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड है वो तो अभी से प्रिपेयर करके रख लेना, उसमें तो कोई हार्म नहीं है। अच्छा, अब तक तो स्पोर्ट्स सेक्शन को UPSC वाले ऑफ कोर्स लाइटली लेते थे, लेने में कोई हार्म भी नहीं था, बट नाउ दे हैव बीन आस्किंग द क्वेश्चन, यू माइट यू नो लाइक नॉट बी वेरी श्योर अबाउट कि कैसे करना है इसको। तो जब आप पुराने क्वेश्चंस देखेंगे, स्पेशली जब कुछ मेजर इवेंट रहे, उसका आप बस नोटिंग कर लीजिए। रीड जस्ट द न्यूज़ इवन इफ़ यू नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, आई वुड से अब इंटरेस्ट पे मत जाइए, अब क्वेश्चन के हिसाब से जाइए। तो जस्ट रीड द न्यूज़ वंस। अभी मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वैसा काम का नहीं मिला, बट कभी भी जैसे जब उस टाइम जैसे ओलंपिक्स हो रहा था या ऐसा कोई भी इवेंट होता है, तो आपको उसके बारे में उस टाइम का थोड़ा सा पता होना चाहिए। रेस्ट इज़ जस्ट यू कैन नो एंड रीड एंड यू नो गो अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आ गया आपका ये 2 स्पोर्ट्स सेक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर वी एंड द होल डिस्कशन ऑन दिस करेंट अफेयर्स थिंग। आज चूँकि फर्स्ट था सेशन एंड आई हैड टू एक्सप्लेन अ लॉट मेनी थिंग्स, सो इट ऑफ कोर्स टुक सम टाइम. But I hope now you have got the idea. I had tried my best because I did not know कि such kind of videos exist in the market, because it's either giving you the direct note or summary or let's say editor summary बहुत होते हैं, but आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हो रही है, क्योंकि 1.5 साल आप किसी और की समरी पढ़ के एग्जाम दोगे तो आई डाउट कि उसका कितना अच्छा आउटपुट आएगा. बट अगर आप अपने कॉन्फिडेंस से दोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके दोगे एग्जाम, अपने प्रिपरेशन से दोगे, अपने नोट से दोगे, तो रिजल्ट आएगा, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है. So I have given you the pointers for both prelims and mains. I've tried to give you and summarize things for you. You can let me know how did you like the video if you have watched till the end. If you feel that's beneficial to you, would you like me to come up with more videos, because I am planning to come up with the whole of January as soon as possible. So I would welcome all your suggestions, you say, all your feedback, because that's the first video and we are starting. What more would you like me to come up with, etc, etc. So please do share your love in the comment section and please do give me the feedback about it. Please do join the Telegram channel, the link of which I have already talked about, so that you are updated about it. So I would see you guys in the next video. Please do subscribe to the channel, please like, please share, please spread the word, because I really need your support. If the word is not spread, if people are not made aware about such initiatives, then it's really difficult to proceed. So I hope that will happen. Thank you so much everyone who have stayed till the end and who have watched it. I'm sure you must have learned something and that's going to be beneficial to you. See you guys very, very soon in the next video. Take care till then. Bye bye. Have a good day.